Hello students, today we are doing the final part of the chapter Taro's Reward. And I believe you must have understood the story of Taro's Reward thoroughly. And today we will check the knowledge and understanding that you have received by going through the videos as well as worksheets. So in this part, I have given you some statements to complete, and these have been taken from the chapter itself. I have not taken anything from the outside or from anything extra. It is everything is taken from your chapter only, and I believe you will be able to do it yourself, and that is possible only if you have gone through the videos very seriously and carefully. And if you have not learned from anything from the videos, then you won't be able to complete your worksheet. So let's check how much you have learned from the videos. So first statement is Taro earned very little money because dash dash. Now you have to think and complete the first statement. Why Taro could not earn much money? Because the villagers did not buy wood from him. Second, after drinking sake, Taro's father showed his happiness by dancing. The neighbor left Taro's hut in a hurry because she wanted to tell each and everyone in the village about the magic waterfall. Taro decided to work even harder and earn extra money because he wanted to buy sake for his old father. The waterfall gave Taro sake and others water because he was a what he was? He was a thoughtful son and he was not greedy like others. Next, the villagers wanted to drown Taro because they thought that they had been cheated, because Taro was getting sake, whereas when they tasted the water, when they tasted, yes, the water from which was coming from the waterfall, so that appeared to them simple water only, and for Taro it was a sake. So they thought, the villagers thought that Taro was making fool of them. The emperor rewarded Taro because he was very sincere, obedient and thoughtful son. Okay, so this was the comprehension check. Now you have to think and write. First statement is family values and our role in the family. बच्चों, हमने एक पोम की थी ए हाउस अ होम. उसमें हमने पढ़ा था कि एक फैमिली, एक घर जो होता है वो किससे बनता है? फैमिली मेम्बर से. और हाउस क्या होता है? उसमें मतलब एक घर की ये पहचान होती है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हों, समझते हों, उनके बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, है ना. तो ऐसे ही जो एक फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे परिवार के संस्कार होते हैं, और हमारा जो रोल है उस फैमिली में वो क्या होना चाहिए, ये आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है और आपको वर्कशीट में लिखने के लिए दिया है. तो आप वो यहाँ से लिख सकते हैं. व्हाट आर फैमिली वैल्यूज़? फैमिली वैल्यूज़ प्ले क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी प्रकार के जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब संस्कार होते हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी को शेप देने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. आवर फैमिली वैल्यूज़ आर अ बेस फॉर द सोसाइटी टू जज अस ऑन. एक समाज में हमें कैसे जज किया जाता है? हमारी फैमिली वैल्यूज़ के आधार पर.
अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम हमारे जो काम हैं या हमारे जो कृत्य हैं, कृत्य मतलब इसको काम ही बोलते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर वो अच्छी नहीं हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये हमारे परिवार के संस्कार हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी फैमिली वैल्यूज़ प्ले करती हैं। एवरी फैमिली मेम्बर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जस्ट लाइक एनी पार्ट इन ए मशीन। जिस प्रकार एक मशीन में उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी प्रकार एक परिवार में जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी एक मशीन के पार्ट की तरह ही होते हैं। मतलब अगर एक पार्ट भी उसमें ठीक काम ना करे तो मशीन ठीक से काम नहीं करती है। सो इफ़ एनी पार्ट ब्रेक्स डाउन द मशीन वोंट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। अगर कोई भी पार्ट जो है वो टूट जाता है या काम करना बंद करता है तो मशीन अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। एवरीवन हैज़ हिज ओन इम्पोर्टेंस इन ए फैमिली। एक परिवार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर टू सपोर्ट अपहोल्ड इन टाइम ऑफ नीड। तो हर व्यक्ति की परिवार में ये जिम्मेदारी होती है कि जब ज़रूरत आए या आवश्यकता हो, जब भी आवश्यकता पड़े तो वो सपोर्ट करें और अपहोल्ड करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, उनको साथ खड़े रहें। इट इज़ द मेंबर्स दैट कंस्टिट्यूट अ फैमिली एंड इट इज़ अ फैमिली विच मेक्स अ हाउस अ होम। तो ये परिवार के लोग होते हैं जिनसे परिवार बनता है, और जो परिवार होता है उसी से एक घर, एक हाउस जो है, एक मकान जो है वो घर बनता है। तो बच्चों ये मेरे अपने जो विचार थे वो मैंने लिखे हैं। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो आप भी अपने तरफ से कुछ लाइनें इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना है वो है लाइक पैट्रिक इन द स्टोरी। पैट्रिक आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तारो इज़ हेल्प बाय मैजिक। सो डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आपको मैजिक में, आप जादू में विश्वास करते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार फर्स्ट चैप्टर था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसमें जादू से उसकी हेल्प हुई थी, है ना? तो उसी प्रकार जो तारो है उसकी भी जादू से हेल्प हुई है ना? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको विश्वास है जादू में? What are the magical things that happen in these stories? तो इन दोनों कहानियों में ऐसी क्या जादुई चीज़ें हैं जो घटी हैं? And which story do you like better and why? अब आपको फिर ये भी बताना है कि इनमें से कौन सी स्टोरी जो है वो आपको अच्छी लगी और क्यों। तो यहाँ भी बच्चों मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर लिखा है, आप अपना लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है आई डोंट बिलीव इन मैजिक बट इन द स्टोरीज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क एंड तारोज रिवार्ड सम मैजिकल थिंग्स अकर विच सीम वेरी सरप्राइजिंग एंड अनइमेजिनेबल। मुझे जादू में विश्वास नहीं है, पर जो कहानियाँ हैं हमारी, जैसे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क एंड तारोज रिवार्ड, उसमें कुछ ऐसी जादुई चीज़ें घटती हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हैं और अकल्पनीय है। अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हुआ था? इन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क एन एल्फ अपीयर्स, ठीक है, एंड स्टार्ट्स पैट्रिक्स होमवर्क, स्टार्ट्स डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब एक बौना जो है वो अपीयर होता है और वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। In Taro's reward, there is a magical waterfall which gives Taro sake, a delicious drink, but others get only simple water from it. और तारोज़ रिवॉर्ड कहानी में क्या है? एक मैजिक जादुई झरना है जो तारों को एक डिलीशियस ड्रिंक साके देता है, जबकि बाकियों को सिंपल पानी से मिलता है। तो these stories help us believe
that somewhere in the world magic is still there but is unknown to the common eyes. तो ये कहानियाँ हमें ये विश्वास करने में मदद करती हैं कि कहीं ना कहीं संसार में जादू अभी भी है, जो कि हमारी साधारण जो हमारी आंखें हैं हम उन्हें मतलब आम आदमी उसे नहीं देख पाता है. Only a few with a special gift can access these. केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो स्पेशली गिफ्टेड हैं बाय गॉड, वो इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं. तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपकी वीडियो. ठीक है, तो अब आप अच्छे से इसे समझें और इसे फाइनल आपका जो ये पार्ट है इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके अतिरिक्त जो आपकी बुक में जो आपको एक्सरसाइज करने को दी गई है वो भी आप करें और चैप्टर को अच्छे से लर्न करें SA1 एग्ज़ाम्स के लिए. घर पर रहें और घर पर रहकर अपना ध्यान भी रखें और पढ़ाई भी करते रहें. बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे.